السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں نجم السلیم بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی اے نیوز فیس بک اور یوٹیوب چینل کا مجھے موقع دیا۔ بدقسمتی سے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں ایسے عناصر، ایسے موقع بہت کم آئے ہیں۔ لوگ فتنہ فساد کرتے آئے، مگر کوئی خود کو مسلمان کہے اور آج بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر اجازت دیں تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ کلپ دکھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ذرا وہ دکھائیے جی ان کو۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی جوانوں، میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو ان کی زندگی، ان کی سیرت سے آپ کو بھی آزاد کروں، کیونکہ ہم ابھی تک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوئے۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ ان کے جب اب اللہ کے حبیب تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے، لیکن ان کو جب مشکل وقت 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا۔ پیغمبر اللہ کے آئے لیکن وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، بڑا کم ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی یہ مشکل وقت سے گزار رہا ہے، میری تیاری کروا رہا ہے، جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی، میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی۔ میرا کوئی ایمان نہیں تھا اللہ میں، میرا کوئی ایمان نہیں تھا اللہ میں، میرا کوئی ایمان نہیں تھا اللہ میں۔ میں جس طرح مسلمان ہوتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ لی تو کبھی صبح کی نماز، کوئی روزہ رکھ لیا تو پاکستان میں نہیں تو نہیں رکھا، میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں، میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں، میرا ایمان نہیں تھا اللہ میں۔ جو میاں والی کی گرمی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا، مجھے گرمی نہیں لگے گی، دوزخ میں بھیج دیا مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ والد صاحب جمعے کی نماز پہ پڑھنے پہ لے جایا کرتے تھے زبردستی، ان کی عزت کرتا تھا اس لیے میں چلا جاتا تھا، اور پھر عید کی نماز، لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی ایمان نہیں تھا۔ دو چیزیں پہلے آئی تھی۔ 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور پہلے 5 سال بڑی مشکل سے امت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، سروائیو کیا، کوئی خوشحالی نہیں تھی۔ نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت خاتم النبیین، نبی روز قیامت، روز قیادت، روز قیامت، روز قیامت، اور قرآن پاک و سنت کی، اور قرآن پاک اور سنت کی جب جنگ بدر ہوئی دیکھیں، بدقسمتی خاص طور پر ہم جو لوگ یہاں اس کو دیکھ رہے تھے، اس کے کلپ اور اس کے گفتگو سن رہے تھے، یہ ہمارے ملک کو دین سے دور سیکولر لبرلزم کی طرف لے کر جو جانا چاہ رہا ہے۔ کیا پاکستان ان مقاصد کے لیے بنا تھا؟ کیا لوگوں نے قربانیاں جو دی تھیں وہ الگ پاکستان کے لیے؟ اور کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اور کیا آج جو یہ بات کرتا ہے کہ، اور میں نے تو، اور میرا قرآن، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر، قرآن کہتا ہے کہ ان کی سیرت، ان کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की सीरत से, तालीमात से आपको आज़ाद कराऊंगा। अब इसी तरह देखें कि पूरी कौम, अजमाए उम्मत, सबका ये कहना है कि 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। ये कहता है 1,40,000। ये कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो जिक्र नहीं है कहीं, जबकि हमारा कुरान पाक कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाद जो पैगंबर आएंगे उनका नाम अहमद होगा। और आप ये देखें कि हमारे कुरान में एक पूरी सूरत मरियम, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। तो फिर ये कहता है कि अगर कोई शख्स, खास तौर पर जो अभी क्लिप आपने देखा, जो ओथ के वक्त ये खातमुन नबीयीन नहीं कह सकता था और जो ऊपर से चेहरे से मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कुराहट क्या बता रही थी। आप ये देखें कि ये कहता है कि जिसने मेरी बात को इंडोर्स ना किया, हमायत ना की, मेरे पैगाम को आगे ना पहुंचाया, उसने शिर्क किया। जबकि अल्लाह की सफात में किसी अल्लाह के बनाए हुए बंदे को शामिल करना ही एक शिर्क है। और हकायक ये हैं कि हर नबी, हर पैगंबर जब आया तो उसने पहली दावत शिरक को रद्द करने की दी। और इसके वजीर ये कहते हैं कि कब्र में पूछा जाएगा, सवाल होगा कि आपने इमरान खान की हमायत की या नहीं। तो फिर इस्लाम की बुनियादी चीजों पर जो वार किया जा रहा है, ये कादियानियत को परवान चढ़ाया जा रहा है। नया पाकिस्तान जब इसने बनाया तो क्या कराची में कादियानियों का हर यूनिट मुतहर्रक नहीं हुआ था? क्या ये महज इत्तेफाक था? और क्या एक प्रोफेसर के दबाव में लाहौर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के तुलबा को सरकारी प्रोटोकॉल से रबवा लेकर जाना और वहां कादियानियों से उन तुलबा को जबरदस्ती दबाव में लाकर यकजहती का इजहार, क्या ये भी महज इत्तेफाक था? और क्या इमरान खान गैर मुल्की मीडिया को इक्तदार में आने से पहले ये कहता नहीं था कि मैं इक्तदार में आया तो कादियानियों को मजहबी आजादी होगी? हर अदारा वो सोचे और अपना रोल अदा करे। ये फितना अगर चल निकला तो पाकिस्तान में ऐसी खून रेजी होगी, ईमान रखने वाले और ईमान कमजोर ईमान के उनके दरमियान जो ये चाहता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, और ये बड़ी बदकिस्मती से जो मैं कहने जा रहा हूं कि देखें, हमें रियासती इदारों का बड़ा एहतराम है, मगर अवाम और सियासी जमातों के लिए दोहरा मेयार कबूल नहीं होगा। और अगर कानून के मुताबिक इसको लगाम ना दी गई तो शदीद अवामी रद्दे अमल आ सकता है। किसी के दबाव में आइन कानून से मावरा अमल कबूल नहीं होगा, चाहे
आज हाथ गिरेबान से पांव को क्यों ना छू रहा हो। सबको मालूम है कि किसी का गुलाम अब किसकी गुलामी करने के लिए कहां कहां मारे मारे फिर रहा है। और यह भी सबके इल्म में है कि नौकरी के लिए पहले तो इसका सारे का सारा इन्हिसार पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी पे था, और अब मायूस होकर या ज्यादा इन्हिसार अमेरिकी सिलेक्शन कमेटी पर यह कर रहा है। यह भी सबके इल्म में है कि भाई अगर आप कहते हैं कि यह पॉपुलर है, तो अगर पाकिस्तानी कौम की तकलीफों का, पाकिस्तानी कौम की जो महरूमियां हैं, अगर उनका तज़किरा जिन अल्फाज में इन 4 माह में ये कर रहा है और जिस तरह अदारों को ललकार रहा है, ये अवाम की नफ्स पे जिस तरह हाथ रख के गुफ्तगू कर रहा है और मीडिया जिस तरह कवर कर रहा है और जिस तरह अदारे उसका नोटिस नहीं ले रहे, तो फिर भाईजान महमूद अचकजई, फिर आप भाईजान मंजूर पश्तीन को भी ये मौका फराहम करके देख लें। ये तो 4 माह के बाद आपको इतने बड़े इज्तिमा या मकबूलियत की बातें हो रही हैं जो 4 माह पहले नहीं थी, तो वो 2 माह में आपको यही मकबूलियत का पैमाना आपके सामने रख के दिखा देंगे। फिर सोचने का मकाम यह है कि अवाम किस करब में है, अवाम किन महरूमियों का शिकार है, जिसकी वजह से लोग ये बातें सुनना चाहते हैं, मगर हम वो बातें हल्की आंच पे करते जरूर आए हैं, मगर करते रहे हैं इस्लाह के लिए, जंग के लिए नहीं। मगर ये जो हमला आवर हो रहा है, इस तरह अगर हमला आवर होना है तो फिर भाईजान ये पैमाना है, तो फिर सबको मौका दिया जाए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो कहा कि 3 अदारों ने मिलकर इस बुत को तराशा, तो 4 माह के अंदर नजर तो ये आ रहा है कि उनमें से कहीं किसी जानब से अब भी उस तरह की सरपरस्ती तो नहीं की जा रही। ये सवाल कौम के ज़हनों में है, और अदारों के अंदर बगावत करवाने के लिए नित नए सोचे छोड़ना, और खास तौर पर इन 4 माह के अंदर, और उसका नोटिस ना लिया जाना, क्या हम इसी तरह सोचते और सोते रहेंगे? मैं नहीं बल्कि मेरे समेत पूरी कौम ये डिमांड कर रही है कि बहुत से कमीशन बने। अब एक पार्लिमानी कमीशन बने जो जावेद हाशमी से जस्टिस शौकत सिद्दीकी से राना शमीम का बयान हल्फी, अरशद मलिक जज की वीडियो और तलाल चौधरी का इंकशाफ, और जो कुछ ये करता आ रहा है अदारों के साथ, उस पे कमीशन बने और कमीशन अपना फैसला दे और पब्लिक करे, ताकि लोगों को पता चल सके कि हुब्बुल वतनी किस चीज का नाम है और बगावत, फितना, फसादी किसको कहते हैं। तो मेरी डिमांड है और मेरे जैसे पाकिस्तानियों की डिमांड है कि शरीयत कोर्ट को अज खुद नोटिस लेना चाहिए जो दीन के हवाले से ये गुफ्तगू कर रहा है, वरना फसाद फैलेगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को
मुतहर्रक होना पड़ेगा, उसको नोटिस इसको करके बुलाना चाहिए, ताकि मुझे सबसे पहले मेरा दीन, मुसलमानों का ईमान, हमारा मजहब, हम किसी तौर पर इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम किसी तौर पर भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि खुद को कोई कलमा गो भी कहे और इस्लामी असास तशख़्ख़ुस पर हमला भी करे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसी तरह हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जहां आप इस्लामी नजरियाती कौंसिल इसका नोटिस ले, जय्यद उलमा इकराम, तमाम मकातबे फिक्र के मुफ्ती आजम और पार्लिमानी कमीशन फिल फौर बने और इससे पूछे कि अब सीवी लेकर किन गैर मुल्की आकाओं के पीछे घूम रहे हो, किससे आजादी और किसकी गुलामी कर रहे हो, और क्या पाकिस्तान के अदारे तुम्हें कब तक लाडला रखेंगे, कब कोई एनआरओ आपको देगा, ये कौम देख रही है और कौम फैसला कर चुकी है। कि तुम तो कहते हो ना नवाज शरीफ आए, तुम अगर इन हरकतों से बाज ना आए तो फिर किसी ने नोटिस भी ना लिया तो तुम बाहर निकल के देखना, नवाज शरीफ आ रहा है और पाकिस्तानी कौम जिस तरह उसके इस्तकबाल के लिए जाएगी, तुम्हें छुपने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं तो आपको कह चुका कि जो रद्द अमल गली कूचों में अवामी आ रहा है, अगर ये नोटिस ना लिया गया, अगर रिक्वेस्ट ना भेजी गई कहीं से भी, और बेशुमार हजारों नहीं करोड़ों पाकिस्तानी ये अमल करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान